Welcome students. Today I am going to start, that is Unit 2, that is Principles of Management. Unit 2, Principles of Management. So in this chapter you may expect questions, 1 mark question, 3 mark questions, 4 mark and 5 mark questions. Okay. So Principles of Management, in this chapter we are going to talk about what is Principles of Management, nature and significance of Principles of Management, and the Principles of Management given by F.W. Taylor and Henry Fayol. Okay students, we will start from the Principles of Management. What is Principles of Management? Management principles are the statements of fundamental truth which serve as guidelines for decision and actions of managers. So Principles of Management, nothing but a guidelines. So guidelines to whom? To the managers. So in an organization, who are the important person? The managers who are managing the business. They are the important person. So they must need some guidelines to manage the business. So this guidelines is known as the Principles of Management. So why this Principles of Management is needed? To run the business smoothly or to achieve the organizational goals smoothly without any conflict or without any confusion. So that is known as the Principles of Management. So here it is a fundamental truth which serve as guidelines for decisions and actions of manager. In any decision, that is manager has to take several decisions in an organization to achieve the goals. So to take a decision, right decision, the Principles of Management helps the manager to take a right decision at the right situation. So it is a general guidelines. It is what? It is a general guidelines. Nothing but आप स्कूल जा रहे हैं, आपका स्कूल में भी गाइडलाइंस होगा आपके लिए, जनरल गाइडलाइंस दैट यू हैव टू रीच इन टाइम इन द स्कूल, दैट इज 8:20 मीन्स यू हैव टू रीच बिफोर 8:20, यू हैव टू असेंबल फॉर द असेंबली, एंड क्लास में कैसा रहना चाहिए, आपको कब इन बिटवीन आपको कैसा रहना चाहिए, लंच अवर्स, देन आफ्टर एंड ऑफ द स्कूल आप कैसा बाहर निकलेंगे. इस तरह बहुत सारा रूल्स दिया गया है, बहुत सारा गाइडलाइंस दिया गया है. दिस इज जनरल गाइडलाइंस. यू हैव टू फॉलो the guidelines given by the teacher. That is आप प्रिंसिपल जो है मैनेजर है, आपको गाइडलाइंस दिया गया है, आप वो गाइडलाइंस को फॉलो करना है. सो प्रिंसिपल को भी अपना एक गाइडलाइंस होगा. he has to follow, he or she has to follow the guidelines to run the school smoothly. So it is nothing but the general guidelines we have to follow to achieve the things. Okay, next we move on to the some terms are there in the Principles of Management. We will see the terms, that is the difference between the terms management principles. See, ऑलरेडी हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में देखे थे. दैट इज नेचर ऑफ द मैनेजमेंट, वेदर द मैनेजमेंट इज साइंस और आर्ट्स में हम लोग देखे थे साइंस क्या है. सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल हियर आल्सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एज इट इज साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर देयर. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल. इट इज व्हाट? It is a flexible. That means we can change according to the situation. But in what in case of scientific principle, it is rigid one. We can't change. It is a rigid one. Scientific principles को हम क्या नहीं कर सकते? Change नहीं कर सकते. Same thing. Scientific principles are absolute. It is what? It is absolute. That is according to the science, जो logical thinking, absolute scientific principle is absolute. But यहाँ पे क्या है? It is a creativity. It is what? It is a creative one. That is management principle is a creative one. According to the situation, with the help of our creativity, we have to solve the problems. Okay. Then we can see that management principle can change. मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैन चेंज. दैट इज हम लोग क्या कर सकते हैं? मैनेजमेंट प्रिंसिपल को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम, बट साइंटिफिक प्रिंसिपल कैन नॉट बी
change. So this is the difference between the terms, that is management principle and scientific principles. Once again I am repeating, management principle is flexible one. It is the creativity, that is we have to use the principles with the help of creativity, then it can be changed according to the time. But in case of scientific principles, it is rigid, it is the absolute in static manner, and then it cannot change according to the time. Okay, next other thing is that is management principle and management techniques. We'll see the difference between management principles and management techniques. Okay, so what is management principle? We know that it is a general guidelines. It is a general guidelines. Scientific, what is management techniques? It is the methods and procedure. Okay, it is a general guidelines. We have to use how we are going to solve a problem, or how we are going to achieve the things. What type of activities we have to do to achieve the things, that is management principle. Management techniques, how we are going to do a thing, that is it will share the methods, what type of methods we have to use, what type of procedures we have to use, that is known as a management techniques. Again यहाँ पे हम देख सकते हैं, it is flexible, that is management principles are flexible but management techniques are not flexible. It is not flexible, or we can say that it is a less flexible. Management principles are more flexible and management techniques are less flexible. Okay students, so this is management principle. So मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में क्या क्या हम लोग देखें? व्हाट इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल? मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज अ जनरल गाइडलाइंस टू द मैनेजर. मैनेजमेंट प्रिंसिपल सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोलेंगे, इट इज अ जनरल गाइडलाइंस टू द मैनेजर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. ओके, देन हम देखे थे डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट प्रिंसिपल, मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड साइंटिफिक टेक्निक्स. इसमें हम देखे थे मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज अ फ्लेक्सिबल वन एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल विल वर्क एट द क्रिएटिविटी ऑफ द मैनेजर. देन मैनेजमेंट प्रिंसिपल can change according to the time. Then हम मैनेजमेंट टेक्निक्स में देखे थे, इट इज़ द प्रोसीजर्स एंड मेथड्स. मैनेजमेंट टेक्निक्स इज व्हाट? इट इज़ द प्रोसीजर्स एंड मेथड्स टू यूज टू इन द वर्क फील्ड. देन नेक्स्ट हम देखे थे कि मैनेजमेंट टेक्निक्स जो है लेस फ्लेक्सिबल है. देन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में हम देखे थे, साइंटिफिक प्रिंसिपल इज अ रिजिड वन. देन नेक्स्ट देखे थे साइंटिफिक प्रिंसिपल कैन नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम. इट इज देन अगेन इट इज अ एब्सोल्यूट वन. इट इज अ एब्सोल्यूट वन. This is the difference between the management principles, management techniques and scientific principles. Okay students, I think with this you can understand what is management principles or principles of management. Next we move on to the features of management. Nature of management principle: universal applicability, general guidelines formed by practice and experiments, flexible, behavioral, cause and effect relationship, contingent. So first one is universal applicability. We know that what is meant by universal applicability. Already हम लोग जो है management that is nature of management में देखे थे, and then coordination में भी हम लोग देखे थे universal applicability. So universal applicability with it is a pervasive one. So pervasive one में हम लोग क्या देखे थे, like management, that is management functions or coordination, it can be applied anywhere, any situation. Same thing, universal applicability, that is principles of management can be applied anywhere in all situations, like whether it is a business organization or non-business organization, small scale or large scale, small scale organization or large scale organization, that is in your home, at your school and other fields, everywhere we can use this principles of management. That's why it is known as a universal applicability. Then second one is it is a general guideline. So principles of management is a general guideline. It is not a ready-made solution. It is only general guideline. That is, it will guide you how to solve the problems, what you have to do when there is a problem, or how we can achieve the organizational goals. So it is a general guidelines. आपको कोई ready-made solution ये नहीं देगा. Okay. Then third one is formed by practice and experiments.
दिस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट. सो जितना भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डिराइव किया गया है या फ्रेम किया गया है, ओवरनाइट में फ्रेम नहीं किया गया है. सो ये प्रिंसिपल्स जो भी है, दैट इज द प्रिंसिपल्स आर फ्रेम्ड बाय एक्सपेरिमेंट्स. दैट इज एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी फील्ड को लेके वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, डे बाय डे इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड देन उसको ऑब्जर्व करते हैं, वो फील्ड में ऑब्जर्व करते हैं वो प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके. इफ दे गॉट गुड रिजल्ट देन ओनली इट इज डिराइव्ड एज अ प्रिंसिपल. सो एक ओवरनाइट में ही आपको ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नहीं मिलता है. सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट. एज वी नो दैट प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट. इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी जाकर आपको पता चलेगा कि वो जो पर्टिकुलर सिचुएशन में हम जो भी गाइडलाइंस यूज़ किए, जो भी प्रिंसिपल्स हम लोग यूज़ किए हैं, वेदर द प्रिंसिपल्स वर्क एट द सिचुएशंस और नॉट. सो इफ द प्रिंसिपल्स वर्क एट द सिचुएशन देन हम क्या कर सकते हैं, वो प्रिंसिपल्स को अगेन एंड अगेन अप्लाई करके देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे कि वो प्रिंसिपल जो है बार बार वो सिचुएशंस में हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं. सो इसके थ्रू ही ये प्रिंसिपल्स को डिराइव किए गए हैं. देन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज अ फ्लेक्सिबल वन. फर्स्ट में ही हम बोले थे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इट इज़ अ फ्लेक्सिबल वन. वी कैन चेंज द प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम. एक ही प्रॉब्लम एक ही सिचुएशन में हम यूज़, एक ही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को एक ही सेम सिचुएशन में हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन द ह्यूमन बिहेवियर. सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम चेंज कर सकते हैं. Then again come to the behavioral. Principles of management is a behavioral one. Why it is a behavioral one? Because it influences the human being, how the human being has to work. So human being को जो है influence करता है कैसा उनको work करना चाहिए, how they have to use resources, optimum resources to get maximum prosperity for the organization. So human behavior में हम use करते हैं principles of management को. So principal management is name as the behavioral one. The next is cause and effect relationship. Cause and effect relationship, that means what? Cause and effect relationship means the principles of management has to be used in one particular situation, then automatically आपको क्या मिलेगा, एक result मिलेगा. Maybe it is not a perfect result because it is used on human beings. So human beings में एक बार आप human beings में कोई भी principles को use करेंगे या apply करेंगे, it is not that the same effect जो है next time भी आपको मिलेगा. But क्या है कि आपको एक छोटा सा गाइडलाइंस मिलेगा, आपको एक छोटा एक रिजल्ट मिलेगा, थ्रू विच द रिजल्ट आप देख सकते हैं कि आपको आगे क्या करना होगा. सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर हम उसको यूज़ करते हैं देन व्हाट माइट बी द इफेक्ट, व्हाट माइट बी द रिजल्ट आफ्टर दैट, ये हमको मिलेगा. सो दैट मीन्स आपको एक रिजल्ट मिलेगा, विद द हेल्प ऑफ द रिजल्ट आप ये डिसाइड कर सकते हैं वेदर इट इज़ द राइट डिसीजन और नॉट. सो दैट्स व्हाई it is said to be a cause and effect relationship. Then principles of management is a contingent one. Why it is a contingent one? Principles of management already हम बोले हैं कि principles of management anywhere or every situation आप use कर सकते हैं. But the thing is what? आपको principles of management according to the organization it may be vary, its degree may be varies. आप कहीं पर भी use कर सकते हैं, but क्या है कि degree may be varies. एक छोटा organization और एक बड़ा organization में there is very differentiation. That is small organization and large organization में डिफ्रेंसिएशन बहुत है. सो अकॉर्डिंग टू दैट आप स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में वैसा ही आपको यूज़ करना होगा, वैसा ही प्रिंसिपल्स को आपको यूज़ करना होगा जहाँ वो प्रिंसिपल्स वहाँ पे काम आए. एंड द सेम थिंग इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में वो प्रिंसिपल्स को आपको यूज़ करना होगा विच विल गिव फ्रूटफुल रिजल्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन. ऐसा नहीं है कि जितना भी प्रिंसिपल्स आपको दिया गया है वो सारा प्रिंसिपल्स को आपको यूज़ करना है, ऐसा नहीं है. एंड इट वोंट गिव यू एनी फ्रूटफुल रिजल्ट. सो Principles of management is the contingent ones. It is used according to the situation, according to the organization. It may vary, it may different, it may vary. Okay students, this is the nature and management of principle. Okay students, next we move on to the importance of management principle. Importance of management principles: providing manager with useful insight into reality, optimum utilization of resources, scientific decisions, meeting changing environment, then fulfilling social responsibilities. Okay, we'll discuss one by one.
Providing manager with useful insight into reality. That means already we talked that principles of management is the general guidelines to the managers. Okay, so managers को इसमें क्या मिलता है? The principles of management, that is if we use the principles of management in each and every situation, automatically क्या होगा? Principles improve the ability of the manager, knowledge of the manager, understanding of the manager, then according to the different managerial situation. So आपको आप मैनेजर है, then managerial situation जो भी situations आपके अंडर आ रहा है, then you have to solve the problems. Okay, so ये managerial situations को solve करने के लिए principles of management जो है आपको help करेगा, manager को help करेगा, and again आप ये principles of management को use करेंगे, then automatically it improves your quality, it improves your ability, efficiency improve होगा. Like हम जानते हैं कि again हम use करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? आपका एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होगा. सो मैनेजर क्या हो सकते हैं? एक फुल फ्लेड्ज्ड मैनेजर बन सकते हैं. डिफरेंट सिचुएशंस को ही कैन हैंडल वेरी इजीली. सो next one is optimum utilization of resources. Again this principles of management provide a guidelines to optimum utilization of resources. Like normally हम लोग बोले हैं कि मैनेजमेंट में हम ये देखे हैं गोल्स अगर हमको अचीव करना है तो एफिशिएंटली हम लोगों को अचीव करना है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली हम लोगों को अचीव करना है. सो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कब होगा? सिस्टमैटिक मैनर में अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को चलाएंगे, ईच एंड एवरी वर्क विल बी डन अकॉर्डिंग टू द सिस्टमैटिक मैनर. सो सिस्टमैटिक मैनर में अगर हम लोग करेंगे देन ऑटोमेटिकली क्या होगा? मैन एंड मटेरियल्स वुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन सिस्टमैटिक मैनर. सो सिस्टमैटिक मैनर में अगर हम यूज़ करेंगे देन ऑटोमेटिकली क्या हो सकता है? वहाँ पे वेस्टेजेस को हम रिड्यूस कर सकते हैं. सो वंस वी रिड्यूस द वेस्टेजेस डेफिनेटली हम क्या कर सकते हैं? ईजिली हम जो हम चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं. सो दैट विल बी गिवन बाय done by the principles of management. So optimum utilization of resources principles of management के through हम ensure कर सकते हैं. The next is scientific decision. So here manager has to take many decisions in an organization. एक manager को एक decision लेके ही काम नहीं करना होगा. According to the situation, according to the work, he has to take more and more decision in an organization. So यहाँ पे principles of management एक systematic and scientific methods आपको बता रहा है कि how you have to use the things to solve the problem. So that is scientific decision. The next जो है meeting changing environment. Again management, that is principles of management helps to meet the changing environments. Here manager को क्या करना होगा? manager जो है बहुत सारा चेंजेस को जो है यहाँ पे अडॉप्ट करना होगा. सो चेंजेस अडॉप्ट करने से पहले मैनेजर हैज़ टू थिंक देयर एम्प्लॉइज. सो एम्प्लॉइज भी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इंडिविजुअल लॉट ऑफ इंडिविजुअल पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो उनके हिसाब से ही मैनेजर को करना होगा. सो ही हैज़ टू थिंक नॉट ओनली फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ही हैज़ टू थिंक फॉर द एम्प्लॉइज ऑल्सो. सो उसके हिसाब से ही क्या करना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चेंजेस होगा वो चेंजेस को अडॉप्ट करना होगा. एंड other thing is what? Environmental changes definitely affect the business. Lot of environmental changes are there, like political environment जो है changes are there, social environment changes are that, technological environment changes are there. Then here manager has to think that which changes is very important for his, which changes we have to adopt. So ये सब जो है manager को करना होगा. So in this situation he has to take right decision whether he has to adopt the changes or not. So here principles of management give a solution which type of changes will be adopted by the manager, which is right for the manager. So the principles of management help meeting changing environment. The next one is fulfilling social responsibility. Again the principles of management guide the manager to fulfill the social responsibility. We know that why there is a need of fulfilling the social responsibility. Why
why it is a commitment of a business towards the social society, because we are using the society's resources. When we are using society's resources to earn our revenue for the business, then definitely the business has to do something for the society. So when we are using the principles of management, definitely principles of management guides the manager to do something for the society. How? Like lot of workers are working in the organization. Why they are coming to the organization? The workers are part of the society. They may be customers also. So वो लोग part of society है, and वो क्या कर रहे हैं, हमारा यहाँ पे organization में earn करने के लिए आ रहे हैं. So if we are providing adequate salary to that person, then automatically he is going to fulfill his own need, own objectives जो होगा वो objectives को वो fulfill करेगा. So through this we can fulfilling the social objective. So students, this is the importance of the principles of management. So principles of management provide manager with useful insight into reality. That means आप कैसा आप principles of management को use करेंगे तो manager को क्या होगा, बहुत सारा manager के वहाँ पे efficiency increase होगा. With the help of the increase in efficiency, ability, knowledge, इसके साथ में manager क्या कर सकते हैं, easily जो है organizational goals को achieve कर सकते हैं. और utilization of resources को हम कैसा use करेंगे ये आपको बता रहा है. Then scientific decision, कैसा हम approach करेंगे, जो भी decisions हम लोगों को लेना होगा according to the situation, कैसा हम approach करके decisions को लेंगे, systematic manner में हम लोगों को decision लेना होगा. Then meeting changing environment, अब हम लोगों को ये देखना होगा कि environment changes जो भी हो रहा है ये कैसा हो रहा है and इसको कैसे हम लोग adopt करेंगे. So इसके लिए भी principles of management आपको help करेगा. Then fulfilling the social responsibility, fulfilling the social responsibility का भी एक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक्ट एज अ गाइडलाइंस की नॉट ओनली ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए भी इंसिस्ट करेगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द फेयल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. नेक्स्ट टॉपिक इज फेयल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. अब फेयल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को जो है 14 प्रिंसिपल्स भी हम लोग बोलते हैं. 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यूजुअली इसको जो है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं. सो दिस 14 प्रिंसिपल्स आर गिवन और डिराइव्ड बाय हेनरी फेयोल. हेनरी फेयोल के बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन. हेनरी फेयोल जो है फ्रेंच के थे. 1840 में उनका 41 में उनका बर्थ हुआ था एंड 1860 में जो है वो इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट किए थे. आफ्टर कंप्लीटिंग द इंजीनियरिंग डिग्री 1880 जो है ही वर्क एज इंजीनियर इन अ कोल माइन. सो कोल माइन में वर्क करते हुए 1888 में जो है इनको मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में प्रमोशन मिला था. सो व्हेन ही गॉट द प्रमोशन एट द time the company was in the position of that is in the situation of insolvent. So he took that situation as a challenge and उसके लिए वर्क किए. देन वर्क करने के बाद वे ओवरकम हुए थे, वो चैलेंज को ओवरकम किए थे. देन एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट, दैट आफ्टर 30 years of his service, at the time of his retirement, the company is one of the leading company in France. Okay, so that means what, साउंड फाइनेंस जो है वो हासिल किए, चैलेंज को एक्सेप्ट करके चैलेंज को हासिल किए थे. ओके, नाउ हम देखते हैं कि व्हाट आर ऑल द कंट्रीब्यूशन ऑफ फेयोल टू द मैनेजमेंट. फेयोल जो है, फेयोल का कंट्रीब्यूशन है, लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशंस आर दैट. बिकॉज ऑफ दैट ओनली हेनरी फेयोल इज नोन एज द फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज. सो व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन? फर्स्ट कंट्रीब्यूशन इज व्हाट, दिस इज द पर्सन दैट इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड मैनेजमेंट टेक्निक्स में जो डिफरेंशिएशन दिखाए थे. दैट इज नॉर्मली पीपल यूजेस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड मैनेजमेंट टेक्निक्स आर सेम, बट नॉट. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड मैनेजमेंट टेक्निक्स आर नॉट सेम वन. सो प्रिंसिपल्स अलग से एंड टेक्निक्स अलग से, ये डिफरेंशिएशन है करके बताएं. कौन बताएं? हेनरी फेयोल ने. देन सेकंड वन इज वी आर नाउअडेज वी आर यूजिंग द प्रोसेस, दैट इज ऑलरेडी हम पढ़े मैनेजमेंट प्रोसेस. मैनेजमेंट प्रोसेस में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट देखे थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग. These are all derived by the Henry Fayol only. Planning, staffing, directing, controlling, organizing, whatever the steps are there, ये सभी steps जो है Henry Fayol ने find out किया था. And not only this, the next जो है 14 principles दिए हैं Henry Fayol, like organization में according to the situation. अगर हम ये principles को use करेंगे तो क्या कर सकते हैं?
ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को इजीली हम अचीव कर सकते हैं. सो दिस आर ऑल द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द हेनरी फयोल. दैट्स व्हाई फयोल इज नोन एज द फादर ऑफ द management. Okay, so now we move on to the what are all the principles, that is 14 principles. Under the 14 principles, first one is the division of work. First principle is division of Okay, first principle is division of work. What is the division of work? Henry Fayol given the principle of division of work. That is, in an organization, a manager has to divide the work into small units according to the need. So, small units means what? Lot of works are there. वो work जो है एक ही person अगर करेंगे, there will be a confusion or there will be a conflict. So, in case अगर हम work को divide करके देंगे, but according to the ability of the people, according to the qualification of the people, according to the work situation, अगर हम वर्क को डिवाइड करके देंगे तो क्या होगा, वो वर्क में जो है पर्टिकुलर पर्सन विल बिकम अ स्पेशलाइज्ड पीपल. दैट इज, एक पर्सन को एक अकाउंटिंग सेक्शन हम दे देंगे तो ऑटोमेटिकली ही विल वर्क इन द अकाउंटिंग सेक्शन. सो बार बार वही काम को वो करते रहेंगे तो क्या हो सकता है, वहाँ पे लाइक वो पर्सन जो है परफेक्ट हो जाएगा, वो काम पे परफेक्ट हो जाएगा. अदर देन दिस व्हाट, अगर ये काम को अगर हम एक ही काम को that is lot of work are there and all the works are given in a particular person, then automatically वहाँ पे वो person को क्या हो जाएगा, workload ज़्यादा हो जाएगा. When there is a workload, then automatically that person becomes a overburden person. So overburden person जो है कभी भी क्या नहीं कर सकते, effective work जो है नहीं कर सकते. So if we want effectiveness or efficiency in our organization, then automatically we have to follow the division of work. But it is not necessary that every organization has to follow the division of work. जहाँ पे आप सिंगल पर्सन को रख के काम कर रहे हैं वहाँ पे डिविजन ऑफ वर्क का ज़रूरत ही नहीं होगा, क्योंकि सिंगल पर्सन को वही पर्सन को सभी काम को देखना होगा. बट इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन. आप लार्ज स्केल में वर्क कर रहे हैं या स्मॉल स्केल में वर्क कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट आपको क्या करना होगा, वर्क को डिवाइड करना होगा. अगर ये प्रिंसिपल्स को आप फॉलो करेंगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन हो सकता है. फॉर एग्जांपल आप देखते हैं, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन like it is a big organization, he has only one manager and the manager has to perform like a salesperson and the same manager has to perform like a finance manager and the same person has to perform like a marketing manager. So what will happen, overburden हो चुका है, सेल्स पर्सन भी वही है, सेल्स मैनेजर भी वही है, प्रोडक्शन मैनेजर भी वही होगा, फिनेंस मैनेजर भी वही होगा एंड देन मार्केटिंग मैनेजर भी वही होगा. सभी काम को ये पर्टिकुलर पर्सन करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ओवरबर्डन. द पर्सन बिकम्स अ ओवरबर्डन. सो वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा काम को पहले करना होगा, कौन सा काम को बाद में करना होगा, डिसीजन वो नहीं ले सकते. सो यहाँ पे अगर सेम थिंग जो है वो पर्टिकुलर जो मैनेजर है, वो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर जो भी होगा, टॉप लेवल मैनेजर या जो भी मैनेजर ये वर्क को असाइन कर रहे हैं, वो मैनेजर ये सभी डिपार्टमेंट को अलग कर देते हैं, अलग अलग यूनिट में रख लेते हैं. सेल्स डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट. इस तरह सभी डिपार्टमेंट को यूनिट वाइज डिवाइड कर देते हैं एंड ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट हैज़ गिवन ऑन मैनेजर टू वर्क. देन ऑटोमेटिकली क्या होगा, एवरी मैनेजर अपना अपना डिपार्टमेंट में वर्क करेंगे. देन यहाँ पे क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, प्रॉब्लम कम हो जाएगा, सबके पास वर्क जो है डिवाइड होके आया हुआ है. सो ऑटोमेटिकली दे विल वर्क ईजीली. सो इस तरह हम कर सकते हैं. नॉर्मली आप देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हम देती है. आप बैंक में गए होंगे, आप बैंक में देखे होंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर देयर. बैंक में आप गए होंगे तो कैश डिपार्टमेंट अलग से होगा, आपको जो है लाइक कैश डिपार्टमेंट के बाद में जो है आपको रिसिप्ट डिपार्टमेंट, आप फाइनेंस, लोन, इस तरह जो है बहुत सारा डिपार्टमेंट आपका होगा. आप क्या कर सकते हैं, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट में अगर आपको कैश डिपॉजिट करना है तो आप डिपॉजिट का एक अलग काउंटर होगा, रिसिप्ट का एक अलग काउंटर होगा. सो आप क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट अलग काउंटर में, रिसिप्ट अलग काउंटर में आप रख सकते हैं. देन फाइनेंस जो है, दिस इज रिलेटेड विद द बिजनेस पर्सन, वो अलग से जाके करेंगे. दिस इज रिलेटेड विद द लोन, दैट इज जो अभी हम लोन लेना है देना है, तो रिगार्डिंग दैट लोन ये अलग से होगा. सो इस तरह ईच एंड
एवरीथिंग विल बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स एंड सबके पास सबको जो है डिवाइड करके अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी उनको ये काम दिया जाएगा एंड वो जो है वो काम को करेंगे। सो आपके लिए भी ये ईजी होगा, जो भी हम जा रहे हैं कुछ काम के लिए बैंक में जा रहे हैं तो हमारे लिए भी ये ईजी होगा एंड द पर्सन दोज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए भी ये ईजी रहेगा। सेम थिंग जो है, और एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, आपका ये घर का ही एग्जाम्पल हम लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका घर में एक फंक्शन हो रहा है, इट मे बी अ बर्थडे फंक्शन। सो बर्थडे फंक्शन में आपको काम करना है। नाउ यू आर टू बिग टू वर्क, ओके, आप काम कर सकते हैं। सो आपका घर में एक बर्थडे फंक्शन हो रहा है, आपका मदर सुबह से अरेंज कर रही है, बर्थडे फंक्शन के लिए सारा अरेंज कर रहे हैं। इफ़ ओनली योर मदर इज़ अरेंजिंग ऑल द थिंग्स, क्या होगा ऑटोमेटिकली जब फंक्शन आपको करना होगा एट मे बी 6 o'clock आपको फंक्शन करना होगा, एट द टाइम वो क्या हो जाएंगी, टायर्ड हो जाएंगी, आपकी मदर क्या हो जाएगी, टायर्ड हो जाएगी। सो वो जो फंक्शन जो है उतना जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना नहीं होगा, उतना अच्छे से नहीं होगा, बिकॉज योर मदर गॉट टायर्ड। सो ये फंक्शन को अगर हम लोग बहुत अच्छे तरह से ऑर्गेनाइज करना है तो क्या कर सकते हैं, जितने भी घर में हम हैं सभी लोग क्या कर सकते हैं, आपस में काम को बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। लाइक मदर अगर खाना प्रिपेयर कर रही है तो हम क्या कर सकते हैं, घर को क्लीन कर सकते हैं, नीट एंड क्लीन अरेंजमेंट कर सकते हैं, फंक्शन कहाँ होगा बैठने के लिए एंड अदर थिंग्स जो भी अरेंजमेंट हम कर सकते हैं। एंड अदर जैसे घर में बाई है, बाई कुछ काम कर लिए, पापा स्वीट्स ऑर्गेनाइज कर लिए। इस तरह ईच एंड एवरी पर्सन अपने अपने काम अलग अलग से करने लगेंगे तो कोई भी टायर्ड नहीं होंगे। एट द टाइम ऑफ द फंक्शन एवरी विल एंजॉय द फंक्शन। सो इसी तरह आप छोटे छोटे चीज़ों को आप देख के अगर डिवाइड करके काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में भी आप क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। सो दैट इज़ द डिविजन ऑफ वर्क। नाउ हियर द प्रॉब्लम व्हेन इफ अगर यहाँ पे आप प्रिंसिपल्स को यूज़ कर रहे हैं, व्हाट इज़ द पॉजिटिव अप्रोच। इफ़ अगर प्रिंसिपल्स को आप यूज़ नहीं करेंगे, व्हाट इज़ द नेगेटिव अप्रोच। सो इन केस इफ़ यू आर यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डिविजन ऑफ वर्क देन ऑटोमेटिकली क्या होगा, वहाँ पे स्पेशलाइजेशन हो सकता है, क्योंकि हमने ये बोला है कि वर्क जो है डिवाइड करके स्मॉल यूनिट में हम दे देंगे तो स्मॉल यूनिट में जो भी होगा लाइक सिंगल एक वर्क को हम लोगों को करना है, अगेन एंड अगेन हम वो वर्क करेंगे तो हम अपना नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो व्हेन एफिशिएंसी इम्प्रूव्स ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, स्पेशलाइजेशन होगा, स्पेशलाइजेशन वहाँ पे इंक्रीज होगा। द नेक्स्ट क्या हो सकता है, इम्प्रूव एफिशिएंसी। सो वर्क हम लोग करते करते इट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, मोर एफिशिएंसी आपका इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट जो है कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है, इन केस इफ यू आर नॉट यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दैट इज डिविजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल्स ऑफ डिविजन ऑफ वर्क को आप यूज नहीं कर रहे हैं, सो क्या हो सकता है, नंबर 1 लैक ऑफ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी वहाँ पे कम होगा क्योंकि आप लॉट ऑफ वर्क कर रहे हैं, नॉट यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग अ सिंगल वर्क, यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग लॉट ऑफ वर्क, देन ऑटोमेटिकली क्या है कि कहीं पर भी आप अपना एफिशिएंसी को दिखा नहीं पाएंगे बिकॉज ऑफ कन्फ्यूजन, ये फर्स्ट करना है या ये फर्स्ट करना है, ये कन्फ्यूजन में आप क्या नहीं कर सकते, एफिशिएंसी को दिखा नहीं सकते। सो ये लैक ऑफ एफिशिएंसी होगा। द नेक्स्ट जो है वहाँ पे स्पेशलाइजेशन भी नहीं होगा क्योंकि यू आर डूइंग डिफरेंट वर्क एट डिफरेंट टाइम, क्योंकि आपको सभी काम को आपको ही करना होगा। सो आप अकॉर्डिंग टू द टाइम आप क्या करेंगे, डिफरेंट वर्क को करेंगे। सो कोई भी पर्टिकुलर वर्क में आप स्पेशलाइज्ड नहीं हो सकते हैं। एंड थर्ड वन इज चेंजेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, में भी जो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क जो है वहाँ पे हो सकता है क्योंकि आप एक वर्क को जो है पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी अ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। सो दिस इज द डिविजन ऑफ वर्क, दैट इज प्रिंसिपल्स जो है, फर्स्ट प्रिंसिपल डिविजन ऑफ वर्क। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल इज authority and responsibility. So authority and responsibility. What is authority? Authority means power. That is power to take decision. Authority means what? It is power to take power to take decision. आपको कोई भी decision लेना होगा then you need a power. Without power you can't take a decision in an organization. So authority means what? It is the power to take decision. Then responsibility. What is responsibility? Responsibility means completing the task
in time. Responsibility means what? It is completing the task in time. You have given some work, you have to complete the work within a particular time. If you are not, that is your responsibility. You are responsible for the particular thing. अगर आप वो काम को complete नहीं किए particular time में, then automatically you will be responsible for all the things. So that is authority and responsibility. What this authority and responsibility principle says, that when a person is given a responsibility to do some work, समझ में आ रहा है? एक पर्सन को अगर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दे रहे हैं काम करने का, देन ही हैज़ टू गिव द अथॉरिटी. मैचिंग अथॉरिटी भी आपको देना चाहिए. आपको अथॉरिटी दे रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बराबर देना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो आपको अथॉरिटी भी बराबर देना चाहिए. सो दोनों जो है मैचिंग होना ज़रूरी है. अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए? मैचिंग होना ज़रूरी है. आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना अथॉरिटी देना भी नहीं है, या अथॉरिटी के बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी देना भी नहीं है. अगर ये दोनों साथ में रहेंगे तभी आप क्या कर सकते हैं? कोई भी काम को अचीव कर सकते हैं, इजीली अचीव कर सकते हैं. अगर ऐसा नहीं होगा तो मिसयूज़ भी हो सकता है, या और कुछ जो है नेगेटिव रिजल्ट भी आ सकते हैं. कैसा नेगेटिव रिजल्ट आएगा ये हम बताएंगे. ओके, सो अथॉरिटी हम लोग देखे थे पावर, जो दैट इज टेकिंग डिसीजन. ओके, पावर टू टेक अ डिसीजन. रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स हम कंप्लीट करना है, वर्क को हम लोगों को टाइम के अंदर कंप्लीट करना है. सो हियर एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट जो है अथॉरिटी, एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी अगर आपको देते हैं तो भी वहाँ पे प्रॉब्लम होगा. एक्सेस अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देते हैं तब भी आपको क्या होगा? वहाँ पे प्रॉब्लम होगा. सो एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ अथॉरिटी जो है डिले इन वर्क भी हो सकता है. सो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाती है. दैट मीन्स आपको ये देखना है कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बैलेंस रहना चाहिए. इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? बैलेंस रहना चाहिए. एग्जाम्पल हम बताती है. फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपको 100 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए दिए हैं. ओके, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दैट दे हैव टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स पर डे, बट दे हैव नॉट गिवन द अथॉरिटी टू परचेज द रॉ मटेरियल्स. क्या आपको समझ में आ रहा है कि अगर अथॉरिटी हम लोग को नहीं दिया है, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी दे चुके हैं बट अथॉरिटी इज़ नॉट गिवन. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दिए हैं? 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, बट अथॉरिटी क्या नहीं दिए हैं? परचेज करने का अथॉरिटी नहीं दिए हैं. व्हेन देयर इज़ नो अथॉरिटी टू परचेज द रॉ मटेरियल्स, हाउ हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं? प्रोड्यूस हम लोग कर सकते हैं. कैसा प्रोड्यूस करेंगे? रॉ मटेरियल परचेज करे बिना प्रोडक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता है. सो जब हम अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं उसी के साथ में हमको क्या करना चाहिए? अथॉरिटी भी देना चाहिए. सो तभी जो है हम क्या कर सकते हैं? फ्रूटफुल रिजल्ट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एंड अदर थिंग इज व्हाट? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन विद एट द सेम टाइम अथॉरिटी इज ऑल्सो गिवन. लेकिन वहाँ पे काम नहीं हुआ है, पर टाइम जो दिए हैं आपको वो टाइम के अंदर काम कंप्लीट नहीं हुआ है, देन इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सुपीरियर दैट उन लोगों को क्या कर सकते हैं? पनिशमेंट, पेनल्टी भी दे सकते हैं. क्योंकि अथॉरिटी देने के बाद भी अगर वो काम को टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट नहीं करे हैं, देन ऑटोमेटिकली क्या कर सकते हैं? हम लोग पेनल्टी भी ला सकते हैं. अगेन हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैचिंग और मिस मैचिंग में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन में 1000 यूनिट्स हमको प्रोड्यूस करना है. एक दिन में 1000 यूनिट्स, वी हैव टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स. ओके, 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन हम लोगों को देना है. ये 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन जो है विद द हेल्प ऑफ 20 पर्सन हम क्या कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ 20 पर्सन एक दिन में ये 1000 यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. नाउ हम देखते हैं देयर आर 3 कंपनीज, वन इज ए, बी एंड सी. ए, बी एंड सी. सो ओके, कंपनी ए को जो है 100 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हम बोले हैं. क्या करें हैं? 100 यूनिट प्रोड्यूस करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए हैं, बट अथॉरिटी इज नॉट गिवन. क्या है? अथॉरिटी नहीं दिए हैं. हंड्रेड यूनिट प्रोड्यूस करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है बट अथॉरिटी इज नॉट गिवन. सेम प्लेस यहाँ पे बी, कंपनी बी को 500 जो है दैट इज डिपार्टमेंट बी और यूनिट बी को 500 यूनिट्स हम प्रोड्यूस करने के लिए दिए हैं. एट द सेम टाइम 20 मेंबर्स को अपॉइंट कर, दैट इज 10 मेंबर्स को 10 मेंबर्स का लेने का अथॉरिटी हम दिए हैं. ओके, देन हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लाइक 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है.
100 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, बट इनको हम क्या दिए हैं 20 मेंबर्स, दैट इज अथॉरिटी हम दिए हैं कि 20 मेंबर्स को लेने का अथॉरिटी दिए हैं। ओके क्योंकि हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है तो हम लोगों को क्या चाहिए, ह्यूमन पावर हम लोगों को चाहिए। सो ह्यूमन पावर हम लोगों को चाहिए। यहाँ ऑलरेडी ये दिखाया गया है 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितना ह्यूमन पावर आपको चाहिए, 20 इज इनफ। विद द हेल्प ऑफ 20 मैन आप क्या कर सकते हैं, 1000 यूनिट पर डे में आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट यूनिट ए को हम जो है ओनली 100 यूनिट प्रोड्यूस करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए हैं, बट अथॉरिटी इज नॉट गिवन, अथॉरिटी हम दिए नहीं है। बट यूनिट बी को क्या दिए हैं, 500 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए दिए हैं, 10 मेंबर्स लेने का अथॉरिटी हम दिए हैं। दैट इज वी कैन टेक 10 मेंबर्स, वी कैन अपॉइंट 10 मेंबर्स टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। देन यूनिट सी को हम 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए दिए हैं एंड अथॉरिटी भी दिए हैं 20 मेंबर्स को लेके हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो व्हाट इज द इफेक्ट, ये प्रिंसिपल हम यूज कर रहे हैं। व्हाट इज द इफेक्ट, फर्स्ट पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज ए को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, अथॉरिटी नहीं दी है। सो क्या होगा, वर्क जो है कंप्लीट नहीं होगा, टाइम पे वर्क कंप्लीट नहीं होगा। एंड सी को जो है 100 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए दिए हैं, 20 मेंबर्स का अथॉरिटी दिए हैं। सो ओवर दे दिए, क्या कर रहे हैं हम लोग, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, अथॉरिटी क्या है ज़्यादा है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम एंड अथॉरिटी ज़्यादा होने से क्या होगा, मिसयूज होने का चांसेस आर देयर। सो यूनिट सी क्या कर सकते हैं, मिसयूज कर सकते हैं। कम टू द बी दैट इज 500 यूनिट्स एंड 10 मेंबर्स, अथॉरिटी कितना दिए हैं, 10 मेंबर्स को लेके जो हम क्या कर सकते हैं 500 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो हियर द बैलेंस बिटवीन देयर इज अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखें 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए कितना मेंबर्स हम लोग ले सकते हैं, 20 मेंबर्स को लेके 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो 500 यूनिट्स के लिए हम कितना ले सकते हैं, 10 मेंबर। सो बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो बी कंपनी क्या कर सकते हैं, सही तरीका से काम कर रहे हैं। सो कंपनी बी क्या कर रहे हैं, एवरी से अचीव कर रहे हैं। ओके सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल। आई थिंक विद दिस एग्जाम्पल आप जो है इजीली समझ गए होंगे व्हाट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ बैलेंस इन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस इफ़ वी आर यूजिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर बैलेंस तरीके से अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली क्या होगा, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट हम लोग ला सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन होगा एंड अच्छा रिजल्ट हम लोग ला सकते हैं। देन मिसयूज़ नहीं होगा, अथॉरिटी में क्या नहीं होगा, मिसयूज़ नहीं होगा। देन मैनेजमेंट जो है अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को विदाउट फेल अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकते हैं। दिस इज़ द पॉजिटिव इफेक्ट व्हेन वी आर यूजिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी in balanced way। नेगेटिव हम देखेंगे इन केस अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में मिसमैच हो रहा है, दैट इज एक्सेस अथॉरिटी विथ लोअर रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ लोअर अथॉरिटी अगर हम करते हैं देन ऑटोमेटिकली देयर विल बी अ कन्फ्यूजन। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगा, अथॉरिटी कम होगा तो हम क्या नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते। सो वहाँ पे क्या होगा, ओवर बर्डन हो जाता है, मिसयूज़ हो जाता है। ओवर बर्डन भी होगा, मिसयूज़ भी होगा, डिले इन वर्क भी हो सकता है। This is the principles of authority and responsibility। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा अभी जितना भी हम पढ़े थे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। व्हाट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, व्हाई द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में जो एंड्रे फयोल का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम लोग देखे थे। एक्चुअली इट इज़ 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट प्रिंसिपल्स को देखेंगे। सो इतना में भी आपको समझ में आ गया होगा एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम अचीव करना चाहते हैं क्या क्या हम लोगों को फॉलो करना होगा। Okay students, we will meet in the next class.